जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक और ये फेज के रिलेटेड है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे उस बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। ऐसी सिचुएशन में हम ये देखना चाहेंगे कि उस बॉडी का फेज क्या है और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम उसको देखेंगे कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उस बॉडी का फेज क्या होता है। तो लुक हियर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन द फेज के फेज होता क्या है। लुक हियर जी, basically here we have a body that is moving in a circle of radius r, and this is a point T at which the body is present. AB is the diameter of the circle, and it's a point Q that is executing the point. Actually we can say the projection of the body that is executing simple harmonic motion। मतलब सेम डायग्राम जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं वही डायग्राम हम यहाँ पे इसको कंसीडर करने जा रहे हैं। So look here, here we have the definition that the angle theta, which specifies the displacement as well as the direction of a motion of a point oscillating simple harmonic motion, is called phase. So what is a phase? आपने क्या कहना है कि बेसिकली ये क्या होता है, एंगल होता है। इट इज द एंगल which specifies, जो कि आपको बताता है, क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दो चीजों के बारे में कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एज वेल एज और साथ ही द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो आपको ये भी बताता है कि उसकी डायरेक्शन किधर है। मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इज कॉल्ड द फेज। उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, फेज है। बेसिकली फेज इज अ क्वांटिटी which shows the state of motion of an oscillator। मीन वही बात है जो अब हमने यहाँ पे एक डिफरेंट वे से की है कि दैट फेज शोज व्हाट, द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन में हमारे पास वही दो बातें आएंगी कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मीन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, और फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। For a body moving in a circular motion, its projection executes simple harmonic motion on the diameter of circle as shown। Previous topic हमारा, it's a body moving in a circle and the Q, the projection of the circle that execute along the diameter and performs a simple harmonic motion। Now look here, then right from this diagram we can write x is equals to x naught cos theta। अब ये रिलेशन कहाँ से आ गया? We are going to consider this right triangle O, it's the point O, the Q and the P। So here we have O, Q, P, a right triangle। Look here, जब प्रोजेक्शन एट द पॉइंट Q होगा तो O से इसका जो डिस्टेंस है that will be the x, and this is what called the instantaneous displacement। O to P basically is the radius and that is the x naught, and it is the x naught, the radius। इसको हम r या फिर x naught से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, that is the maximum amplitude, and QP is the perpendicular। उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं कि we are going to apply the cos theta। तो cos basically ratio between the base and hypotenuse। So here we have a cos theta is equal to the x over x naught, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो x is equals to the x naught cos theta, and the theta is equals to omega t. Also we know that previously हम इसको भी देख चुके कि x is equals to the x naught cos omega t. So here we have the relation for the displacement. Now look here, x is the displacement, that's the instantaneous displacement, and x naught is the amplitude. Where x is the instantaneous displacement and x naught is the maximum displacement, और ये जो maximum displacement है, it is also known as the amplitude. इसको हम amplitude भी कहते हैं. Now consider a figure. Same we have a figure. We have the point P that is moving in a circle. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने जा रहा है अब हमारे पास? So look here, Ji. Here we have the body moving in a circle, and this is what the point P. Now look here. Here's the angle phi. Basically, it's the initial angle, and then the body moves from x to p. The body moves from x to p. So in such a case, हमारे पास क्या होगा? कि we have the an additional angle omega t. Look here. If I projection the phase theta is equal to omega t minus phi naught when the object is at a point A. आपके पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है. लुक हियर, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो लुक हियर, ये आपके पास आ जाएगा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारे पास जो एंगल है, दैट इज दी फाई नॉट. और टोटल एंगल हमारे पास क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज दी ओमेगा टी. तो इसमें हम क्या कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू दी ओमेगा टी माइनस फाई नॉट व्हेन इट इज एट द पॉइंट ए. जब आपको वो प्रोजेक्शन जो होगा, ये जो बॉडी होगा, वो पॉइंट ए पे मौजूद हो. By projection, the phase theta is equal to omega t plus phi naught when the object is at the point B. So पहले आपका बॉडी यहाँ पे था, मूव करके जहां तक पहुंचा, यहाँ वो उसका फेस जो है वो जीरो हो गया बिकॉज वो अपनी इनिशियल स्टेट तक था. अब यहाँ से वो चला और यहाँ तक आ गया. लुक है, ये देखिए आप, दैट्स अ पॉइंट बी. अब इस पॉइंट पे उसका जो इनिशियल फेज है वो कितना बनता है? फाई नॉट बनता है. और फिर वो पॉइंट बी से मूव करके पॉइंट पी तक चला जाता है. तो ये टोटल उसका एंगल होगा विद द एक्स एक्सिस, दैट विल बी नाउ इज इक्वल टू द ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. लुक हियर, ये टोटल फेज होगा, जो टोटल एंगल होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू द ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एट द पॉइंट बी. सो देन वी कैन राइट, जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन लिखी थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा. अब उस थीटा के यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे कि x इज इक्वल टू दी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई. तो जब आप पॉइंट ए की बात करेंगे तो देन जो टोटल फेज होगा इट विल बी इज इक्वल टू दी ओमेगा टी माइनस फाई नॉट आ जाएगा. लो लुक हियर वी हैव दी थीटा इज इक्वल टू दी ओमेगा टी माइनस फाई. And when we are talking about at the point B, so then we have the relation x is equal to the x naught cos omega t plus phi naught. वो phi naught की इक्वल आ जाएगा. मतलब अब ये टोटल एंगल आपके पास बनता है वो आपके पास phi naught और ओमेगा टी. अब इसमें ये आपके पास जो phi naught है ये बेसिकली क्या है? इट इज कॉल्ड द इनिशियल फेज. ये बेसिकली आपके पास इनिशियल फेज है. एंड ओमेगा टी आपके पास वो एंगल है जो कि टाइम टी में बना जब बॉडी आपका मूव करता है पी टू पी.
The time varying quantity omega t plus phi is called the phase of the motion. Now look here, why it is called the time varying quantity? Because it varies with the time. वो time के साथ साथ क्या होती है कि vary करती है. It describes the state of motion at a given time. ये किसी भी आपके पास टाइम पे जो आपको गिवन होगा उसको बताएगी कि इस वक्त स्टेट ऑफ मोशन कौन सी है. अब यहाँ स्टेट ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि दैट बॉडी कितना एंगल बना रहा है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि दैट इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ मोशन एट अ गिवन टाइम. द कांस्टेंट फाई इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट. वो कहता है कि जो फाई हम ऐड कर रहे हैं या फाई हम माइनस कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाता है फेज कांस्टेंट, जिसे हमने इनिशियल फेज का भी नाम दिया था. अब यहाँ पे देखिए कि व्हेन द फाई इज जीरो, लुक हियर, जब आपके पास फाई जीरो होगा मतलब बॉडी आपका मीन पोजीशन से जब अपनी पोजीशन को स्टार्ट करने जा रहा है, तो एट दैट टाइम वी हैव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, and it goes on decreasing with the time. And when we have the time is equals to t by 2, मतलब half of the time period, time is equals to t by 2 mean half of the time period. तो ऐसी सिचुएशन में amplitude becomes zero, मतलब the body is at a mean position, and then it moves towards the other side of the position. So when the time we have the t at that time, the body completes the one vibration and it is present at the other extreme. वो दूसरी extreme पर मौजूद हो. So this is what your that goes on proceeding with the passage of time. Along x-axis हमने या सॉरी ये along जो था वो y-axis आता है. तो यहाँ आपके पास ये x-axis आपने क्या लेना है कि टाइम लेना है. Now look here, given phi is equals to 90 डिग्री, जब phi आपके पास 90 डिग्री होगा तो देन क्या होगा, ये यू कैन सी हियर जो फेज है वो आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देखिए कि आपके पास 90 से स्टार्ट हो रहा था, पॉजिटिव था. यहाँ अब आपके पास अगेन क्या हो रहा है कि वो इट इज जीरो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो चुकी है. मतलब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेज 90 था, अब वो बेसिकली इधर की बात कर रहा है कि यहाँ से वो जो है वो मोशन आपकी स्टार्ट हो रही है, जस्ट लाइक दिस वन. तो हम यहाँ से इसको काटें ऐसे यू, तो बेसिकली आप देखेंगे कि वो यहाँ से कहता है कि ऐसी मोशन स्टार्ट होती है आपकी. तो here we have the half of the time period t by 2, तो 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट होगी. here we have the जब आपके पास यहाँ पे हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट होगी मतलब बॉडी जब वो मीन पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम से वापस वो मीन तक आ जाएगा, एंड देन इट मूव इन अदर डायरेक्शन, और यहाँ पहुंच के वो क्या करेगा जी के अपना जो टाइम है वो उसको कंप्लीट कर लेगा. मीन ये यहाँ से एक्चुअली वाइब्रेशन अगर हम इसको पीछे करें तो इट शोज कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो द हकीकत तो यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे. क्यों? ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये एक हाफ साइकिल आ गया और एक ऐसे आपका हाफ साइकिल आता है यहाँ. तो व्हेन द फेज इज 90 डिग्री, तो आपके पास ये बात आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए जरा आगे कि व्हेन द फेज इज 180 डिग्री, अगेन क्या होगा कि आपके पास ग्राफ जो है वो नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. जब आपके पास टाइम पीरियड टी बाई 2 होगा, ऐसी सिचुएशन में वो 1/4 ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, एंड दिस वन ये आगे जिस सिलसिला चलता चला जाएगा. तो here we have a comprehensive graph, जो पीछे हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. ये हमारे पास एक टेबल है. टेबल तीन चीजों के दरमियान हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम है, फेज है एंड डिस्प्लेसमेंट है. तो
when the time t is 0, the phase is 0, omega t will be 0, and we have the amplitude a, जो मतलब बॉडी आपका एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a. We have the time t by 4, that is the fourth half the time period. It's a phase pi by 2, मतलब एंगल जब वो 90 डिग्री का बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा 0, मतलब बॉडी आपका मीन पोजीशन पे मौजूद होगा. When we have the t by 4 half of the time period, the phase is pi, phase आपके पास जो है वो pi होगा, and the displacement will be is equal to the minus a. मीन अब क्या सीन है हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच चुका है, तो दैट्स व्हाई here we have a negative sign here. When the time is 3t by 4, angle form is 3 pi by 2, that is 270 डिग्री, मतलब बॉडी वहां एक्सट्रीम से वापस अपनी मेन पोजीशन तक आ चुका है. And when the time period is t, the phase is 2 pi, means the body has reached the same first extreme position. यहाँ से वो चला था उसी तक वो वापस आ चुका है. So this shows what the time period and the phase. तो ये कुछ बातें थी फेज के बारे में. आप अपनी बुक से इसको कंसल्ट कीजिएगा लेक्चर को सामने रख के, तो फिर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो यहाँ तक आपके पास आती है जी बात फेज की.